Once again, a very good morning to all students. We are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy, as you know very well. In the last video, in the last class, we discussed the first ratio, that is a liquid ratio. In the liquid ratio, you know very well, we have to study the two important ratio. The first one is the current ratio and quick ratio. So in the last video, you can see the formula of liquid ratio. Liquid ratio can be categorized or कह सकते हो can be classified into two categories. That is a first one is a current ratio and number second is a quick ratio. If we are talking about the current ratio, so the current ratio formula is current assets divided by current liability, and whereas we are talking about the quick ratio or liquid ratio, so quick ratio equals to quick assets divided by current liability. So what is the meaning of current assets? You know very well. Current assets includes all the assets which are converted into cash within 1 year. Whereas the current liability includes the various items. It includes the items which are paid within 1 year. यानी कि current liabilities वो liability हैं जिनका पेमेंट एक साल के अंदर कंपनी को करना है. Quick assets क्या है? Quick assets means equals to current assets minus inventory minus prepaid expense. So if we are talking about the quick assets, so quick assets means the current assets minus inventory minus prepaid expense. So this is a summarization of quick assets. If we are talking about the important point regarding the current ratio and quick ratio is that, please note down in your copy. If we are talking about the ideal ratio, so the ideal current ratio will be 2:1, whereas ideal quick ratio is 1:1. It means अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 आता है तो उसकी करंट रेशियो की पोजीशन क्या होती है? सही मानी जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, if we are talking about the current ratio, so the formula is current ratio, current asset divided by current liability. It means हमारा जो करंट रेशियो है उसका आइडियल फॉर्म क्या है? 2:1. यानी हमारी करंट एसेट्स हमेशा करंट लाइबिलिटी के क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए. तभी जाकर ये रेशियो क्या आएगा? 2:1 आएगा. इट मींस कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसी आइडियल रेशियो के बेसिस पे आपको करंट रेशियो के रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है या फिर उस पर कमेंट करना है. आपको एक पैरामीटर दे दिया गया कि अगर करंट रेशियो 2:1 है तो उस कंपनी की का करंट पोजीशन सही है, लेकिन अगर उसका 2:1 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी का जो लिक्विड पोजीशन है वो करेक्ट नहीं है. वहीं हम दूसरी बात करें क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो का आइडियल फॉर्म क्या है? आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1. आइडियल क्विक रेशियो क्या है आपका? 1:1. इट मींस आपकी क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का जो रिलेशन है वो इक्वल होना चाहिए. यानी जितना आपका क्विक एसेट्स होना चाहिए उतनी आपकी क्या होनी चाहिए? करंट लायबिलिटी भी होनी चाहिए. सो बेसिकली दिस इज अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म for the purpose of the interpretation of current ratio and quick ratio. So उसको आप लोग अपने पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए कि सर करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो में जो करंट एसेट होता है उसकी मीनिंग क्या है, करंट लायबिलिटी की मीनिंग क्या है, और क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स की मीनिंग क्या है, दैट इज द करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. If we are talking about the ideal ratio, so the ideal current ratio is 2:1, whereas the ideal liquid ratio quick ratio is 1:1. Ideal current ratio 2:1 है और ideal liquid ratio 1:1 है. सर एक क्वेश्चंस की हेल्प से हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है.
So as you can see that on your screen, the question is prepare balance sheet. बट आपको बैलेंस शीट मैं बनाने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक डाटा आपके सामने दिया है, इस डाटा की हेल्प से आप क्या करो, कैलकुलेट करो करंट रेशियो और कैलकुलेट करो क्विक रेशियो। दो रेशियो आपने पढ़ लिए, दोनों रेशियो कैलकुलेट करो। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, 12% डिबेंचर 2000, सन्ड्री क्रेडिटर 120, शेयर कैपिटल 1600, रिजर्व एंड सरप्लस 360, फिक्स एसेट्स 80, इन्वेंट्री 320, डेटर डेटर की वैल्यू है आपकी वेट अ मिनट, डेटर की वैल्यू है आपकी 320 एंड कैश इन कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू है 480। ओके, सो ये वैल्यूज आपको दी हुई है, इस वैल्यूज के हेल्प से आपको क्या करना है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आई होप आपने सारे डाटा नोट कर लिए होंगे। डाटा क्या है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स एसेट्स, इन्वेंटरी, डेटर, कैश इन कैश इक्विवेलेंट। यू हैव टू फाइंड द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सो लेट्स वी मूव टू द सॉल्यूशन। आपके सामने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है देखिए। सो according to the current ratio, if we are talking about the current ratio, you know very well the formula is current assets divided by current liability. अब आप करंट एसेट्स को फाइंड आउट करो, कौन कौन सी करंट एसेट्स हैं डाटाज में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करंट एसेट्स क्या क्या हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करंट एसेट्स आर इन्वेंट्रीज, डेटर एंड कैश इन कैश इक्विवेलेंट। यानी इन्वेंट्रीज आपकी क्या है, करंट एसेट्स हैं, डेटर्स आपके क्या है, करंट एसेट्स हैं, कैश क्या है आपका, करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, करंट लायबिलिटी में अकॉर्डिंग टू द डाटा एलिमेंट्स हैं दैट इज ओनली क्रेडिटर्स। आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपको कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, करंट एसेट्स में वैल्यू लेनी है इन्वेंट्री, डेटर और कैश की, और करंट लायबिलिटी में किसकी वैल्यू लेनी है, क्रेडिटर्स की। अब हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इन्वेंट्री की वैल्यू 3 आपकी 80, डेटर की वैल्यू है 320 और कैश की वैल्यू है 480। वेयर एज क्रेडिटर्स की वैल्यू है आपकी 120। आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लो। तो अकॉर्डिंग जब मैंने वैल्यू पुट किया तो हमने फाइंड आउट किया कि इसका टोटल आ रहा है 880 और इसका टोटल आ रहा है 120। अब इसको सॉल्व कर लो तो रेशियो क्या आ रहा है 88:12। और सॉल्व हो सकता है, यस सर। ये किससे सॉल्व हो सकता है, 4 से, 4 3 12, 4 2 8, 4 2 8। सो अगर आप देखो तो यहां इनके बीच का रिलेशन क्या फाइंड आउट हो रहा है, इनके बीच का रिलेशन हो रहा है 22:3। आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, 3 को 22 से डिवाइड कर दो, सॉरी 22 को 3 से डिवाइड कर दो, 7 21 1.039। तो ये इसी के साथ चलता रहेगा 7.33। सो आपका जो करंट रेशियो आया वो क्या आया, 7.33:1। यानी आपकी करंट लायबिलिटी अगर 8 है तो करंट एसेट्स आपका उसका 7 टाइम्स है। जबकि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, आपका करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। तो यहां आप कमेंट करोगे कि इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में कंपनी की जो करंट एसेट्स है उसकी करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। कितना होनी चाहिए, सिर्फ 2 टाइम्स होनी चाहिए। 2 टाइम्स से थोड़ा बहुत ऊपर हो, थोड़ा बहुत नीचे हो तो निगोशिएबल है, बट लेकिन जब किसी कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में इस तरह का रिलेशन है, इसका मतलब कंपनी की पोजीशन सही नहीं है। सो दिस इज अ करंट रेशियो। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड रेशियो, किसके बारे में बात करें, क्विक रेशियो की बात करें, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो आपके सामने ही है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो आपको पता ही है 120 है। तो सिचुएशन में करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी में क्या है 120, क्रेडिटर्स सेम आएगा। लेकिन क्विक एसेट्स में आपको पता है, क्विक एसेट्स में हम लोग क्या नहीं लेते हैं, क्विक एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस
करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। हम लोग क्विक रेशियो में क्या करते हैं, क्विक रेशियो में हम लोग करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। So when we find out the quick ratio, the formula is quick ratio is quick assets divided by current liability. And what is the expression of current quick asset? That is current assets minus prepaid expense minus inventory divided by current liability में according to question क्या है, creditors। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करें और एक्सप्लेन करें तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आई थी लास्ट टाइम, क्योंकि सेम क्वेश्चन है 880, उसमें से हमें क्या नहीं लेना है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो क्वेश्चन में है ही नहीं। इन्वेंट्रीज है, हाँ कितना इन्वेंट्रीज है 80 और करंट क्रेडिटर कितना है 120। तो आप अगर आप इसको सॉल्व करोगे 800 डिवाइडेड बाई 120, सो 0 से 0 कट गया, रेशियो बन के आ रहा है 80:12। और सिंपलेस्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, किसके टेबल से, ये कर सकते हैं हम पहले 4 के टेबल से, 4 3 12 4 20, तो ये आ गया 20:3। तो फिर आपको इसको सिंपलेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियोज हमेशा जो है 2:1, यानी करंट लायबिलिटी हमेशा 1 के फॉर्म में शो होनी चाहिए। 3 6 18, 2 आया, पॉइंट लगाया 0, फिर ये क्या होता रहेगा, मॉडरेट होता जाएगा 6 6, तो रेशियो आएगा आपका 6.67:1। अब आप यहाँ पे भी उठा के देखो, चाहे आपका करंट रेशियो हो चाहे आपका क्विक रेशियो हो, इस क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी की जो पोजीशन है वो बेटर नहीं है, क्योंकि आइडियल रेशियो ये बोलता है, यहाँ का आइडियल रेशियो है 2:1 और यहाँ का आइडियल रेशियो है 1:1, तो दोनों ही सिचुएशन में कंपनी की पोजीशन सही नहीं है। इसकी कंडीशन में क्विक रेशियो के फाइंड आउट में अगर हम देखें तो कंपनी का क्विक एसेट्स बहुत ज्यादा है और उसी तरह से करंट एसेट्स भी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द करंट लायबिलिटी। वंस अगेन प्लीज आप तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमेशा ये चीज याद रखिए कि जब भी हम लिक्विडिटी रेशियो फाइंड करेंगे, जब भी हम लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो लिक्विडिटी रेशियो में जो भी दो रेशियो आते हैं, करंट रेशियो या क्विक रेशियो, दोनों का जो ये वाला कंपोनेंट है, डिनोमिनेटर वाला कंपोनेंट है, वो हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी आप जाकर आप आइडल रेशियो के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आइडल रेशियो की और एक्चुअल रेशियो की, ठीक, और यहां पर आपका करंट रेशियो आया, आइडल रेशियो क्या होता है करंट रेशियो का 2:1, बट आपका एक्चुअल रेशियो आया है 22:3। इसको भूल जाइए अभी कुछ देर के लिए, आया 22:3। और करंट लिक्विड रेशियो आपका आया है, इसका आइडल होता है 1:1 और आपका आंसर आया है 20:3। अब हम आपसे ये कहें कि यू हैव टू कमेंट ऑन द करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द आइडल रेशियो, यानी आइडल रेशियो के बेसिस पे आप कंपनी की करंट रेशियो लिक्विड रेशियो पे कमेंट करो कि कंपनी का करंट रेशियो लिक्विड रेशियो सही है, ज्यादा है, कम है, आप हमें बताओ। तो एज ए अकाउंटेंट जब आप इस डाटा को देखोगे तो आप कमेंट करने के लिए बहुत अच्छे मैथमेटिशियन होंगे, तब समझ जाओगे कि यहाँ पर आइडल रेशियो कम है और एक्चुअल रेशियो आपका बहुत ज्यादा है, ऐसे देख के बता दो। लेकिन जब हमें एक्चुअली एनालाइज करना पड़ेगा तो कम से कम आपको इन सब की वैल्यू को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, यानी इक्विवेलेंट करने के लिए आप क्या करोगे, अगर 3 को 1 के इक्विवेलेंट करना है तो 22 को 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7.33। उसी तरह से यहां 3 को अगर इक्विवेलेंट करना है 1 के, तो यहां इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.66। अब आप इजिली क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अलग अलग करंट रेशियो पे, लिक्विड रेशियो पे, क्योंकि यहां रेशियो क्या है 2:1, यानी कि करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए 2। यहाँ करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो करंट एसेट्स भी कितनी होनी चाहिए 1। अब आप यहाँ कंपेयर करो, तो अब आप इजिली कंपेयर कर सकते हो, इजिली कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर आपका करंट रेशियो यानी एक्चुअल पोजीशन को अगर एनालाइज करो तो आपकी करंट एसेट्स आपकी करंट लायबिलिटी से बहुत ज्यादा है, यहाँ 2 टाइम्स होनी चाहिए।
यहाँ इक्वल होनी चाहिए, यहाँ 7 टाइम्स है, यहाँ मोर देन 6 टाइम्स है। ओके, move to the next question. As you can see that on your screen, the illustration number 3, Bajaj Limited has furnished the following information regarding its current assets and its current liability. Information is current assets 3000, cash and cash equivalents 3000, trade receivables data 14,000, BR 10,000, inventories are 26,000, and whereas a prepaid expense are 1,000. Whereas the current liability trade payable, current creditor 16,000, bills payable 7,000, outstanding expense 4,000, total current liability is 27,000. Calculate current and quick ratio and comment upon the liquidity of the company. यानी दोनों रेशियो निकालो फिर कमेंट करो। इतना कमेंट तो तुम लोग करते ही हो पहले से ही, तो एक बार और कमेंट कर दो। ठीक है, तो पहले हम लोग कौन सा रेशियो निकालेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द करेंट रेशियो। So I hope you will take the screenshot of this question. So let's move to the solution part of this question. So what is the formula of current ratio? Current ratio का formula क्या होता है? You know very well. The formula of current ratio is current assets divided by current liability. Whereas the quick ratio का formula क्या होता है? Quick ratio का formula होता है आपका quick assets divided by current liability. ओके, अब इस क्वेश्चन में आप देखो तो करंट एसेट्स में क्या आएगा? सर करंट एसेट्स में तो सब आता है, कैश आता है, डेटर आता है, बीआर आता है, इन्वेंट्री आता है, प्रीपेड आता है, सब आता है, सब जोड़ दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी सब हमने ऐड किया तो टोटल में दिया हुआ है 54,000। मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। करंट लाइबिलिटी में तो सब आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, टोटल है 27,000। आप इसको सॉल्व कर दो। 54,000 divided by 27,000, the ratio will be 2:1. अगर आप इसको सॉल्व करोगे 27 1 जा 27 2 जा 54। बट अगर हम क्विक एसेट्स की बात करें तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, और करंट लायबिलिटी तो वही रहेगी। करंट लायबिलिटी की मीनिंग करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों कंडीशन में सेम होती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सो करंट एसेट्स आपका कितना आया था? 54,000। उसमें से क्या क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 26,000, और प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू दी है 1,000। सो माइनस कर दो, डिवाइड बाय 27,000। अब इसको सॉल्व करो, 27,000 चला गया, 27,000 डिवाइडेड बाई 27,000, सो क्विक रेशियो आ गया 1:1। देखो मैंने कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन में यू कैन सी दैट करंट रेशियो आया 2:1, क्विक रेशियो आया 1:1। अब आपको कहेगा कमेंट करने के लिए, तो कहोगे कंपनी की पोजीशन एकदम परफेक्ट है। In this situation, company's current ratio as well as the quick ratio has a perfect, because the ideal current ratio is 2:1, whereas the ideal quick ratio is 1:1. So at the last you can comment on it. The short term financial position of company is sound. आप सेंटेंस क्या लिखोगे? The liquidity position और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी इज साउंड, ये इसका कमेंट होगा। बिकॉज आप रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज द करंट रेशियो एज वेल एज द क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू द आइडियल क्विक रेशियो एंड आइडियल करंट रेशियो। ओके, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट रेशियो। So the second ratio on your syllabus in the chapter of accounting ratio, that is a solvency ratio. So what is solvency ratio? First of all discuss it, or it was already discussed in the last class. Solvency ratio which are related to the long term payment capability of the company. यानी with the help of solvency ratio हम क्या करते हैं? कंपनी की लॉन्ग टर्म
पेइंग कैपेसिटी को चेक करते हैं कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को कितना पे कर सकती है। जिस तरह से आपने लिक्विडिटी रेशियो को देखा तो आपने उसमें ये देखा कि कंपनी अपने करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट से कितना पे कर सकती है, या लिक्विड एसेट से करंट लायबिलिटी को कितना पे कर सकती है। यानी कंपनी के पास इतना लिक्विड एसेट्स होना चाहिए, कंपनी हैव अ इनफ लिक्विड रेशियो कि इमीडिएटली अगर उसे अपनी करंट लायबिलिटी को पे करना हो तो पे कर सके। इसीलिए दैट्स वाई आइडल लिक्विड रेशियो इज 1:1। अगर हम बात करें दूसरे रेशियो करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो में आपकी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की दुगनी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप अपनी सारी करंट लायबिलिटी का पे भी कर दो तो आपके पास हाफ करंट एसेट्स बिजनेस में होनी चाहिए। उसी तरह से सॉल्वेंसी रेशियो ये चेक करता है कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए कितना कैपेबल है। So with the help of solvency ratio, you know very well, we study the lots of ratio in this topic. So the first ratio which are discussed under the solvency ratio, that is a debt equity ratio. जैसा हम लोगों ने कल के वीडियोस में, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सॉल्वेंसी रेशियो में हमें कई रेशियोज पढ़ने, जैसे हमने लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ा, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। उसी तरह से सॉल्वेंसी रेशियो में भी आपको कई रेशियो पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला रेशियो होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। What is debt equity ratio? So debt equity ratio shows the relationship between the debt fund and equity fund। यानी डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या करता है, कंपनी के डेप्ट फंड और इक्विटी फंड दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। और इस रेशियो का फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्ट? डेप्ट मींस द टोटल डेप्ट, डेप्ट मींस द टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय ओनर्स इक्विटी। Okay, so this is a formula of debt equity ratio. What is the formula of debt equity ratio? Debt equity ratio means debt upon equity. In long way we can say that debt equity ratio means the long term loans divided by internal equities। internal equities का मतलब क्या होता है? internal equities का मतलब होता है like a, if you are talking about the internal equities, तो उसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं पहले। टोटल डेप्ट का मतलब यहां पर ये होता है, डेप्ट का मतलब होता है, डेप्ट मींस द टोटल डेप्ट मींस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ओके, द wait a minute, long term it means only non current liability, because non current liability includes the only long term liability. Okay, and whereas if we are talking about the equity, so the equity means shareholder fund. And what is the explanation of shareholder fund? Shareholder fund means the share capital plus reserve and surplus. Okay, so if you can see the formula of debt equity ratio, so you can see that the formula of debt equity ratio is debt upon equity, in which debt means the non-current liability, because these are related to the long-term liability, and whereas the equity means the shareholder fund. Shareholder fund includes the share capital, reserve and surplus. And you know very well share capital में क्या आता है, equity share capital, preference share capital, reserve and surplus में क्या आता है, reserve like a various types of reserve, revenue reserve, capital reserve, surplus means profit and loss account का credit balance, ये सब कुछ चीजें इसमें include की जाती हैं। The second formula of under the solvency ratio, that is the interest coverage ratio, that is the interest coverage ratio। and ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, प्रॉपरली पढ़ा हुआ है किस चैप्टर में? बिजनेस में। व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो?
This formula is very popular for you because this formula is already discussed by me in the business studies class. The formula is earning before interest and tax divided by fixed interest charges. यानी कंपनी को जितना इंटरेस्ट देना है, इट मींस द फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, और कंपनी को किसमें से इंटरेस्ट देना होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स. दैट्स व्हाई इट विल आल्सो नोन एज द ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. और ये बात आपको याद होनी चाहिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा किसमें प्रेजेंट किया जाता है, इट विल बी प्रेजेंटेड इन द टाइम्स. ये हमेशा टाइम्स में प्रेजेंट किया जाता है. और अगर हम डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेप्ट इक्विटी रेशियो हमेशा एक्सप्रेशन में फाइंड आउट किया जाता है सिंपल प्रोपोर्शन में. जैसे अगर आंसर आया डेप्ट इक्विटी रेशियो का तो आप बताओगे 2:1, 1:1, इस तरह से आप शो करोगे. और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल डेप्ट रेशियो, ये भी मैं बात करूं तो आइडियल डेप्ट रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है. इसको भी आप अपनी कहीं कॉपी में नोट कर लेना. That is the ideal debt ratio will be ideal debt ratio, debt equity ratio will be 2:1 considered as, ये भी लाइन याद रखिए, considered as safe. यानी कि अगर हम बात करें कि किसी भी कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है, जिसे हम सेफ मानते हैं. अगर उससे ज्यादा डेप्ट होगा तो कंपनी जो होती है वो थोड़ा और रिस्की हो सकती है, क्योंकि डेप्ट फंड जितना ज्यादा होगा, यू नो वेरी वेल, कंपनी के ऊपर इतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा, कह सकते हो खतरा रहेगा कि कंपनी को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एडवर्स सिचुएशन में कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ सकता है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जल्दी वाइवा में पूछा जाता है. लास्ट ईयर मैं वाइवा में था आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम में, आपके सीनियर्स के साथ 12th के, तो जो एक्सटर्नल आए थे उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स. वो क्वेश्चन ये था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आइडियल फॉर्म क्या हो सकता है. सो ये भी आप लोग अपने जानकारी में रख लो. दैट इज acceptable interest coverage ratio is 6 or 7 times. ये भी रख लो दिमाग में, क्या पता इस बार फिर वाइवा में या इस बार एग्जाम में ही आ जाए. एक्सेप्टेबल आईसीआर मतलब अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 से 7 टाइम्स आता है, इसका मतलब कंपनी का जो पोजीशन है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट पेइंग कैपेबिलिटी वो कंसीडर सेफ माना जाता है. सो अगर हम दोनों पॉइंट को रिवाइज करें सॉल्वेंसी रेशियो में, इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व. अभी तो मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला बता दिया कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, जिसका मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस होता है. और डेप्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल फॉर्म क्या होता है, 2:1, यानी कंपनी का जो डेप्ट है वो इक्विटी के 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरा कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. फॉर्मूला इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. दैट शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट इक्वल्स टू इन टाइम्स. You can see that the acceptable ICR is 6 और 7 टाइम्स. यानी अगर किसी कंपनी का ICR यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 से 7 टाइम्स आता है, उससे कम आ रहा है तो कंपनी की पोजीशन सही नहीं है. ठीक है, यानी कंपनी का जो ICR है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो 6 से 7 टाइम्स के अगर आसपास आता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है, तो इट शुड बी कंसिडर एज सेफ. उससे ज्यादा, बहुत कम आएगा, इसका मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट कैपेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है. और इंटरेस्ट किस पे देती है कंपनी, लॉन्ग टर्म लोन पे. लॉन्ग टर्म लोन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो का हेल्प लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंसी रेशियो वी कैन चेक द
efficiency of the company regarding its long term liability. So I hope आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया ये पॉइंट it is a clear for you. Today we discussed firstly the numerical problem related to the current ratio and quick ratio, and thereafter we discussed the first two ratio of the solvency ratio. Okay, so